This is your computer class. Students, today we will continue with the chapter 9, using the internet. Students, in our previous class we already discussed the Google Drive. What is Google Drive and how to open the Google Drive and how to uploading the files in the Google Drive and how to organize the files in the Google Drive. Now today we are going to discuss the sharing files on Google Drive. Sharing files with Google Drive. Students, you can share your files with others easily by using the Google Drive. Actually, anyone using the Google Drive can easily view and edit the file which you share. जो भी आप फाइल शेयर करिए वो दूसरा पर्सन उसको व्यू भी कर सकता है और एडिट भी कर सकता है जो कि Google Drive का यूज़ कर रहा है. Okay students, so to share a file in the Google Drive, follow the steps like first on all, click on the file which you want to share. Which you want to share. जो भी फाइल आपको शेयर करनी है उस फाइल पे आप क्लिक करेंगे. Then after clicking the file, you click on the share button. आप share button पे क्लिक करेंगे. Click on share button. Actually this share button has a sign like this. एक मैन इस तरह से बना होता है, प्लस का साइन होता है और इस तरह से एक मैन बना होता है. ठीक है, this is the sign of the share button. Then click on the share button which is present on the upper right corner. Upper right corner पे share button होता है, इस पे आप क्लिक करेंगे. Then a box is appear. Actually after clicking the share button, the share with others box appear. Share with other box appear. और जैसे ये box appear होगा, then in the people box, एक people box होगा, वहाँ पर आप उन peoples का एड्रेस टाइप करोगे जिसको आपको ये फाइल शेयर करनी है. So in people box type the address of the people. आप उन लोगों का एड्रेस टाइप करोगे यू वांट टू शेयर द फाइल. जिससे आपको फाइल शेयर करनी है उन लोगों का आप एड्रेस टाइप कर देंगे. ओके स्टूडेंट्स, so this is the third step. Next is the you can also type a message in an add a note. एक add a note box होता है, उसमें आप कोई मैसेज भी टाइप कर सकते हैं. Then type a message in add note box. Add note box. Then after adding the note, एक मैसेज ऐड करने के बाद आप क्या करेंगे, क्लिक ऑन सेंड बटन. क्लिक ऑन सेंड बटन. After clicking this button, your file is shared with the people whose address is typed in the people box. जिस भी पर्सन का people box में एड्रेस है, ईमेल एड्रेस है, उनको ये फाइल सेंड हो जाएगी आफ्टर क्लिकिंग ऑन द सेंड बटन. सो दिस इज द स्टेप टू शेयर फाइल with others in the Google Drive. Next is the e-commerce. What is e-commerce? Actually the e-commerce, the full form of the e-commerce is the electronic commerce. E-commerce, and the full form of the e-commerce is the electronic commerce. Electronic commerce, and the electronic commerce include the buying and selling goods using the internet. इंटरनेट का यूज़ करके जो भी हम प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं या वो सब क्या है, ई कॉमर्स के अंदर आता है. ठीक है, तो आज जैसे कि आप कोई भी प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल कर रहे हो या प्रोडक्ट ऑनलाइन परचेज कर रहे हो, ये सब क्या है, ई कॉमर्स है.
by using the internet. And the use of internet service is now a wide has increased at that time, क्योंकि सभी लोग आजकल इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं और इंटरनेट का यूज़ बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो गया है. एंड द नीड ऑफ ई कॉमर्स हैज़ ऑल्सो ग्रोन बिकॉज ऑफ यूजिंग द इंटरनेट मोर एंड मोर. ज़्यादा इंटरनेट यूज़ करने की वजह से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स जो है उसका भी बहुत ही ज़्यादा ग्रो हो गया है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स. एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इंक्लूड द ऑनलाइन शॉपिंग लाइक टिकट बुकिंग एंड बिल पेमेंट एंड सो ऑन. कोई भी प्रोडक्ट आप ऑनलाइन परचेज कर रहे हो, अपने टिकट बुक कर रहे हो मूवी के, ट्रेन के, बस के, या फिर आप कोई भी पेमेंट पे कर रहे हो कि किसी भी जैसे कि आप इलेक्ट्रॉनिक बिल पे कर रहे हो, वाटर टैक्स पे कर रहे हो, कोई भी आप बिल पे कर रहे हो, ये सब कहाँ आता है, किसके अंदर आता है, these also include in the e-commerce means electronic commerce. What is the advantages of e-commerce? Actually it reduce the use of paper, क्योंकि जब भी आप कोई बिल पे करने जाते हो तो आपको क्या होता है, उस बिल की कॉपी होनी चाहिए, हार्ड कॉपी होनी चाहिए, और आप वहाँ जाते हो और वहाँ पर लाइन में लग कर क्या करते हैं, अपना बिल पे करते हैं. तो आपका पहले तो ये टाइम रिड्यूस कर देता है कि आप जो भी बिल पे करने जा रहे हो उसमें जो भी आपका टाइम ट्रेवल में जा रहा है या फिर आपको उस क्यू में वेटिंग में जो आपका टाइम जा रहा है वो रिड्यूस हो जाता है. मीन्स इट सेव्स अवर टाइम एंड ऑल्सो द रिड्यूस ऑफ यूज़ ऑफ पेपर, क्योंकि आप जब भी बिल पेमेंट करोगे तो आपको एक हार्ड कॉपी चाहिए होगी और वो भी आपको पर्सन आपको एक हार्ड कॉपी देगा, तो आपका पेपर का यूज़ कम होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स यूज़ करने में. टाइम सेव होता है एंड ऑल्सो इट प्रोवाइड द क्विकर डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि जैसे ही हम पेमेंट करते हैं किसी चीज़ का तुरंत ही हमारा पेमेंट वो हो जाता है और ये बहुत ही जल्दी डिलीवरी हो जाती है. ठीक है. एंड इट प्रोवाइडेड ईजी एक्सेस टू वास्ट नंबर ऑफ ऑनलाइन सर्विस. हम ईजिली किसी भी ऑनलाइन सर्विस को एक्सेस कर सकते हैं घर बैठकर. सो दिस इज द एडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स. नेक्स्ट इज द ऑनलाइन शॉपिंग. ऑनलाइन शॉपिंग. Students, nowadays online shopping has also increased. Actually, the online shopping is a form of electronic commerce. ये एक electronic commerce का ही एक form है and it allow you to buy the products online by using the internet. इंटरनेट का यूज़ करके आप कोई प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो, दैट इज नोन एज ऑनलाइन शॉपिंग. मीन्स आप प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो, सेल नहीं कर रहे हो. ठीक है. दिस इज नोन एज ऑनलाइन शॉपिंग. एंड यू कैन एक्सेस अ वेबसाइट टू सर्च फॉर अ प्रोडक्ट यू वांट. जो भी प्रोडक्ट आपको चाहिए उसको सर्च करने के लिए आप किसी भी वेबसाइट का यूज़ करके उसको प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हो. एंड द प्रोडक्ट अवेलेबल ऑन द वाइड रेंज इन ऑनलाइन. ऑनलाइन में वाइड रेंज, वो प्रोडक्ट की वाइड रेंज अवेलेबल होती है. मीन्स जिस प्राइस में आपको वो प्रोडक्ट चाहिए, जिस टाइप का चाहिए वो आपको अवेलेबल होता है ऑनलाइन. सो देयर इज वाइड रेंज ऑफ ऑनलाइन प्रोडक्ट्स लाइक कार, फर्नीचर, मोबाइल एसेसरीज, home accessories, cosmetic, clothing and so on. There wide range of online products are available in a website. So some of the websites you can use for buying online products, that is Amazon, Snapdeal, Flipkart and ebay.com. These are the some popular websites which are used for the for online shopping. Okay students. नेक्स्ट इज व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग. ऑनलाइन शॉपिंग के एडवांटेजेस क्या हैं. सो इट ईजियर टू फाइंड अ प्रोडक्ट ऑनलाइन देन लुकिंग इन अ लोकल स्टोर. किसी भी लोकल स्टोर में आप कोई प्रोडक्ट आप परचेज करने जाते हो तो आपको पहले तो वहाँ पर बताना होता है किस तरह का प्रोडक्ट है. लेकिन ऑनलाइन में क्या है, आपने वो प्रोडक्ट सर्च किया, ईजिली आपको वाइड रेंज अवेलेबल हो जाती है. लेकिन हो सकता है आपको लोकल मार्केट में इतनी वाइड रेंज अवेलेबल ना. नेक्स्ट इट सेव्स अवर टाइम एंड एनर्जी, क्योंकि आपको लोकल मार्केट में जाने के लिए ट्रैवलिंग में टाइम लगेगा और उस प्रोडक्ट को सर्च करने में टाइम लगेगा. सो ऑनलाइन शॉपिंग से क्या होता है, हमारा टाइम सेव होता है, क्योंकि हमें घर बैठे ही कोई भी प्रोडक्ट जो हम चाहते हैं उसको हम सर्च कर सकते हैं और परचेज कर सकते हैं. सो इट सेव अवर टाइम एंड एनर्जी एंड इट गिव यू एक्सेस टू वाइडर रेंज ऑप्शन. वाइडर रेंज के ऑप्शन हमें अवेलेबल होते हैं कि हमें जो भी प्रोडक्ट चाहिए वो हमें किस रेंज में चाहिए, हम वो भी उस अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हैं. सो इट हेल्प अस टू फाइंड अ प्रोडक्ट विद इन अ रेंज. एक रेंज में हमें वो प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए हेल्प करता है. नेक्स्ट व्हाट इज द डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग. एक्चुअली यू मे रिसीव एन इंफीरियर प्रोडक्ट बिकॉज एट द टाइम व्हेन वी आर शॉपिंग ऑनलाइन and we are not touching the product.
वी डोंट नो हाउ द क्वालिटी इज दिस, हम उसकी क्वालिटी नहीं जानते, हम उसको टच नहीं करते। जब तक कि हमारे पास वो डिलीवर ना हो जाए प्रोडक्ट, तब तक हम उसे टच नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम उसकी क्वालिटी भी नहीं जानते। मे बी द प्रोडक्ट विच वी परचेज ऑनलाइन मे बी इंफीरियर, गुड क्वालिटी का ना हो, सो इट मे बी पॉसिबल, एंड इट इज़ डिफिकल्टी टू रिटर्न अ प्रोडक्ट दैट यू बाय ऑनलाइन। कोई भी प्रोडक्ट हमने ऑनलाइन परचेज किया तो उसको डिफिकल्टी होती है रिटर्न करने में, क्योंकि वापस से हमें साइट पे जाकर उसको रिटर्निंग देनी होती है, वो पर्सन आता है और लेकर जाता है, तो देयर इज अ डिफिकल्टी फॉर रिटर्निंग अ प्रोडक्ट विच वी परचेज ऑनलाइन। दिस इज द डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग। नेक्स्ट इज ऑनलाइन मोड्स ऑफ पेमेंट। ऑनलाइन मोड्स ऑफ पेमेंट, एक्चुअली जब भी हम कोई भी ऑनलाइन प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो हमें देयर इज नंबर ऑफ वेज बाय विच वी कैन पे। हम कहीं भी किसी भी तरह से पे कर सकते हैं बाय यूजिंग कैश एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। डिलीवरी के समय हम कैश भी दे सकते हैं, एंड ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं डायरेक्टली फ्रॉम अवर अकाउंट से डायरेक्टली ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं या कैश ऑन डिलीवरी कर सकते हैं। सो ऑनलाइन पेमेंट involve the use of electronic money that is known as e-money. E-money means इलेक्ट्रॉनिक मनी। हम ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए क्या यूज करते हैं? ई मनी मीन्स इलेक्ट्रॉनिक मनी का यूज करते हैं। और ये इलेक्ट्रॉनिक मनी क्या होती है, कहाँ होती है? द मनी इन योर बैंक कैन बी ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉनिकली फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर। जो मनी हमारे इलेक्ट्रॉनिकली हमारे बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है, वो कैसी मनी होती है? ई मनी होती है, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक मनी। एंड यू कैन यूज इट विद द यूज ऑफ क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड। और इस ई मनी को यूज करने के लिए हमें क्या होना चाहिए? हमारे पास डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड। इसके थ्रू, डेबिट या क्रेडिट कार्ड के थ्रू हम ई मनी का ट्रांसफर करते हैं वन बैंक अकाउंट टू अनदर बैंक अकाउंट। एक्चुअली ये इलेक्ट्रॉनिक मनी कैन ऑल्सो बी स्टोर्ड एज ई मनी ऑन वन कार्ड सच एज स्मार्ट कार्ड। स्मार्ट कार्ड में भी हमारी ई मनी स्टोर होती है, ठीक है। सो क्रेडिट कार्ड, व्हाट इज क्रेडिट कार्ड एंड व्हाट इज डेबिट कार्ड? एक्चुअली जो क्रेडिट कार्ड होता है, द क्रेडिट कार्ड, व्हेन यू यूज अ क्रेडिट कार्ड टू पे, द बैंक गिव्स द पेमेंट, ये इसके लिए ये बैंक पेमेंट करता है। एक्चुअली कभी कभी क्या होता है, हमें बैंक क्रेडिट कार्ड देता है, ओके स्टूडेंट्स, हमें बैंक क्रेडिट कार्ड देता है। और जब भी हम कोई भी शॉपिंग करते हैं ऑनलाइन, तो जब हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो हमारे क्रेडिट कार्ड से हम पेमेंट कर सकते हैं। फॉर दिस अवर बैंक पे दैट ऑनलाइन बिलिंग, ठीक है। जो हमने ऑनलाइन पेमेंट की है उसके लिए हमारा बैंक उसके लिए पे करेगा, बट एट द सर्टेन टाइम पीरियड, उस एक सर्टेन टाइम पीरियड के अंदर वो मनी हमें बैंक को वापस रिटर्न करनी होती है। दिस इज नोन एज क्रेडिट कार्ड। एंड व्हाट इज डेबिट कार्ड? डेबिट कार्ड एक्चुअली प्रोवाइड बाय द बैंक which we have the account। उस बैंक में जहाँ पर हमारा कोई अकाउंट हो, वो हमें एक डेबिट कार्ड वो बैंक हमें प्रोवाइड करती है, जिससे जो डेबिट कार्ड क्या करता है, जब भी हम कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीदते हैं या कहीं भी जाके लोकल मार्केट में हम प्रोडक्ट परचेज करते हैं, जब हम ऑनलाइन पेमेंट का मोड चूज करते हैं तो ये डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, बट द मनी इज डिडक्टेड फ्रॉम अवर अकाउंट। वो मनी हम कहाँ से डिडक्ट होती है? हमारे अकाउंट से। सो इट मस्ट हैव दैट योर अकाउंट हैज़ द सफिशिएंट बैलेंस। अगर आपके अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस नहीं है, जो कि आपके ऑनलाइन पेमेंट के लिए मोड के लिए चूज़ किया है, जो अमाउंट, उतना अमाउंट आपके अकाउंट में नहीं है, तो आपका ये पेमेंट नहीं हो सकता है। इसके लिए आपके अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस होना चाहिए। क्रेडिट कार्ड में क्या होता है? बैलेंस के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि बैंक पे करता है, बाद में आपको बैंक को रिटर्न करना होता है। डेबिट कार्ड में डायरेक्टली आपके अकाउंट से डिडक्ट होती है मनी, तो आपके अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस होना चाहिए फॉर पेइंग बाय यूजिंग द डेबिट कार्ड। नाउअडेज देयर इज अ भीम ऐप। आपने भीम ऐप के बारे में सुना होगा, VHIM। व्हाट इज भीम ऐप? एक्चुअली द फुल फॉर्म ऑफ द भीम ऐप इज द भारत इंटरफेस फॉर मनी। भारत इंटरफेस फॉर मनी। Actually, this Bheem app
is a mobile app which is launched by our Indian government. एक इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से एक लॉन्च किया हुआ एक ऐप है. It allow the user to instantly transfer the money from one account to another. दो पार्टीज के बीच में एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे को ट्रांसफर करने के लिए भीम ऐप का यूज किया जाता है, विच इज लॉन्च बाय आवर इंडियन गवर्नमेंट इस ऐप. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज द नेक्स्ट टॉपिक. Next topic is the blog. Now, what is blog? Actually, the blog is a meaning of communication. Communication meaning होता है that can have the text, image, video, audio. Blogs में कुछ भी हो सकता है. It is a meaning of communication. Blog is a meaning of communication that have the text, audio, video, and images, etc. Actually, you can use a blog to share your ideas for online readers. जो भी online readers होते हैं उनके साथ अपना कोई भी आइडिया आप शेयर कर सकते हैं थ्रू by using the blogs. And blogs are the one page. एक पेज का होता है, एक पेज में ही होता है ब्लॉग. ब्लॉग ये नहीं है कि आपने एक पूरी डायरी लिखी और उसको शेयर कर दी. दैट इज नॉट अ ब्लॉग. ब्लॉग मीन्स you share your ideas with online readers and the readers can also comment on your blogs. आपने जो भी ब्लॉग सेंड किए हैं ऑनलाइन रीडर्स के लिए वो रीडर्स उस ब्लॉग पर अपने कमेंट्स भी सेंड कर सकते हैं. सो व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ द ब्लॉग? एक्चुअली ब्लॉग इज नॉर्मली अ सिंपल पेज. सिंपल और सिंगल पेज होता है. एक सिंगल पेज होता है, ये नहीं है कि कई सारे पेजेस का कलेक्शन नहीं होता है. एक सिंगल पेज होता है एंट्रीज के लिए. और एंट्रीज क्या होती है? डिस्प्ले होती है रिवर्स क्रॉनिकल ऑर्डर में. रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है? मीन्स जो लेटेस्ट एंट्रीज हैं वो हमेशा टॉप पर शो होगी. जैसे कि यूट्यूब में जो लेटेस्ट अपलोडिंग वीडियोस ऑडियोज या कोई भी व्लॉग्स होते हैं वो क्या होते हैं? टॉप पर शो होते हैं. और जैसे जैसे उनका टाइम होता जाता है लेटेस्ट एंट्रीज हमेशा टॉप पर शो होती हैं. दैट इज नोन एज रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. ठीक है, तो जो ब्लॉग्स होते हैं वो रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में शो होते हैं. एंड ब्लॉग इज एक्चुअली पब्लिक होता है वो ब्लॉग. मीन्स कोई भी उसे सी कर सकता है. कोई भी जो भी उस ऐप को जो भी उसे ऑनलाइन एक्सेस कर रहा है वो पर्सन उसे सी कर सकता है, देख सकता है. ब्लॉग जनरली कंटेन टेक्स्ट. ब्लॉग्स में क्या होते हैं? टेक्स्ट होते हैं, कंटेन टेक्स्ट. और कई तरह के ब्लॉग्स होते हैं जैसे कि वी ब्लॉग्स. वी ब्लॉग्स मीन्स द वीडियो ब्लॉग्स. वीडियो ब्लॉग्स क्या होते हैं? वीलॉग्स, वीडियो ब्लॉग्स एंड पॉडब्लॉग्स, ऑडियो ब्लॉग्स. नेक्स्ट इज द फोटोलॉग्स. फोटोलॉग्स इज द फोटोब्लॉग्स. तो हम वीडियो ब्लॉग्स को वीलॉग्स बोलते हैं, ऑडियो ब्लॉग्स को पॉडब्लॉग्स बोलते हैं और फोटोब्लॉग्स को फोटोलॉग्स बोलते हैं. स्टूडेंट्स, देयर इज नाउ अ डेज माइक्रो ब्लॉगिंग इज अपकमिंग practice in which small piece of information are posted on the internet. जैसे कि आपने सुना होगा ट्विटर, फ्रेंड फीड, ये सारे जो ऐप हैं ये क्या है? माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट्स होती हैं. तो ट्विटर है ये माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट्स है जिसमें कि क्या है? जैसे कि कोई भी न्यूज़ है उसको अपडेट करने के लिए एक स्मॉल पीस में वो इन्फॉर्मेशन सेंड की जाती है. दैट इज नोन एज माइक्रो ब्लॉगिंग. एंड नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ब्लॉग एंड वेबसाइट? एक्चुअली ब्लॉग इज अ टाइप ऑफ वेबसाइट. ब्लॉग एक तरह की वेबसाइट है और वेबसाइट क्या है? अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस. मतलब कई सारे वेब पेजेस का एक कलेक्शन है. लेकिन ब्लॉग एक तरह की वेबसाइट है जिसमें आपके स्मॉल पीस में सिंगल पेज में एंट्री शो हो रही है. एंड द लैंग्वेज विच आर यूज ऑफन इन द ब्लॉग्स आर सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल. जो भी हम इजीली अंडरस्टैंड कर ले वो लैंग्वेज यूज़ की जाती है ब्लॉग्स में. लेकिन वेबसाइट में फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ की जाती है, फॉर्मल तरीके से बनाई जाती है, फॉर्मल लैंग्वेज ही यूज़ की जाती है वेबसाइट्स में. ओके स्टूडेंट्स, एंड नेक्स्ट ब्लॉग्स आर इंटरेक्टिव. कुछ इंटरेक्टिव होते हैं जिससे कि जब भी कोई इंटरनेट एक्सेस करे जो ब्लॉग्स हैं वो इंटरेक्टिव नहीं होगा तो रीडर कभी भी उसे ओपन नहीं करेगा रीड करने के लिए. तो वो इंटरेक्टिव होते हैं. एंड यू कैन
राइट अबाउट योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट। जिस भी एरिया ऑफ इंटरेस्ट में आपने सर्च किया है उसी तरह के ब्लॉग्स आपको अपीयर होंगे। जैसे गूगल पे क्या होता है, ऑटोमेटिकली कुछ हमें ब्लॉग्स शो करते हैं क्योंकि हमने उस तरह के ब्लॉग्स में अपना इंटरेस्ट शो किया होता है, सर्च किया होता है, तो हमारे एरिया ऑफ इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है। लेकिन इस वेबसाइट में कोई भी इंट्रैक्शन नहीं होता है, इंट्रैक्टिव नहीं होता है, और कोई भी एरिया ऑफ इंटरेस्ट मतलब जब हम कोई पर्टिकुलर वेबसाइट खोलेंगे तो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन पूरी वेब पेजेस के रूप में कलेक्ट होगी। ओके स्टूडेंट, एंड द कंटेंट विच आर पोस्टेड इन द ब्लॉग्स इज कॉन्टिन्यूसली और रेगुलरली अपडेटेड होता रहता है। लेकिन जो वेबसाइट होती है इसमें जो मेजर कंटेंट होता है वो अपडेट नहीं होता है, सिर्फ उसमें जो इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि सपोज दैट आपके स्कूल की कोई वेबसाइट है, तो स्कूल में जो न्यू एडमिशन टाइम में या फिर रिजल्ट के टाइम में या ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम अपडेट होती रहेगी, लेकिन उसका जो मेजर कंटेंट होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता है। ओके स्टूडेंट, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ब्लॉग एंड वेबसाइट। नाउ नेक्स्ट इज पॉडकास्ट। व्हाट इज पॉडकास्ट? एक्चुअली पॉडकास्ट क्या होता है? द ऑडियो ब्लॉग्स आर नोन एज पॉडकास्ट। जो ऑडियो ब्लॉग्स होते हैं उन्हीं को हम पॉडकास्ट कहते हैं। सो ऑडियो फॉर्म में जो भी ब्लॉग्स हैं उनको हम बोलेंगे पॉडकास्ट। अ पॉडकास्ट इज रिकॉर्डेड एंड स्टोर्ड ऑन अ वेबसाइट। किसी वेबसाइट पर रिकॉर्ड करके हम स्टोर कर सकते हैं, एंड यू कैन लिसन अ पॉडकास्ट डायरेक्टली फ्रॉम द वेबसाइट और बाय डाउनलोडिंग इट, कि हम डायरेक्टली वेबसाइट में ही सुन लें या फिर हम उसे डाउनलोड कर लें, कभी भी जब भी मन हो वो हम सुन सकते हैं। And you can easily download, you can easily share, you can easily listen the podcast on your computer, on your smartphone. Students, what is the difference between podcast and blogs? Actually podcast you can listen the podcast, लेकिन ब्लॉग्स को क्या होता है, आपको रीड करना होता है, क्योंकि ब्लॉग्स क्या होते हैं, टेक्स्ट के फॉर्म में होते हैं, पॉडकास्ट ऑडियो के फॉर्म में होते हैं। एंड यू यूज अ ऑडियो मीडिया और स्मार्टफोन टू लिसन अ पॉडकास्ट। कोई पॉडकास्ट सुनने के लिए स्मार्टफोन या ऑडियो मीडिया की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन ब्लॉग्स के लिए क्या है, यू यूज़ अ कंप्यूटर और स्मार्टफोन टू रीड अ ब्लॉग्स। किसी भी उसको रीड करने के लिए हमें कंप्यूटर मतलब एक स्क्रीन की नीड होगी जिसमें हम उसको देख सकें और पढ़ सकें। एंड पॉडकास्ट फाइल कैन बी ईजिली डाउनलोडेड, बट द व्लॉग्स फाइल्स कैन नॉट बी डाउनलोडेड। उनको हम डाउनलोड नहीं कर सकते क्योंकि वो टेक्स्ट होता है, इन्फॉर्मेशन होती है, उनको रीड कर सकते हैं, नॉट डाउनलोडेड। Student, now with this topic your chapter 9 is also completed. We will discuss the exercise in our next class. Okay students, thank you, have a nice day.